Hey students, hi everybody, welcome to the very session. My name is Preksha Sharma, your English educator at Unacademy, and I give you all a very warm welcome to this session wherein we are going to deal with the topic tenses and subject verb agreement. I'm gonna extensively explain you all this very particular topic. These very particular topics. So please make sure that you all are listening to me very carefully. Also, kindly give me the confirmation in the comment section that I am pretty clearly visible to everyone right in there. Okay, I would like to know from all of you about this. This is really going to be like an amazing session for everyone right in there. Please make sure that you all are going to listen to me super carefully. Alrighty. So, guys, kindly give the confirmation in the comment section. Am I audible and visible to everyone right in there? Can you all see me well? Can you all hear me well? Because the session is going to be an important one for everybody right in there. It's really important you pay attention to every bit of whatever I am mentioning in this session, guys. All right, here already. Okay. Hey Priyanshi. Hi dear. Welcome to the very session. So everyone, I'm sure you guys know my name. My name is Preksha Sharma. I am your English educator and I have been guiding a lot of students for the past few years to be really good in the communication skills and to score good marks in the academics. And I am pretty sure that I can help you all with it very well. Okay. Moving ahead, everyone, this is the very topic as I told you all. So I'm sure you guys already know that what we are like here dealing with how you need to go ahead with every topic which is there in your syllabus. Okay everyone. तो मैंने आप लोगों को बेटा ये बहुत बार पहले बता रखा है कि आप लोग टेंसेस अगर आप लोगों को टेंसेस आ जाते हैं मतलब ये जो दो टॉपिक्स है ना टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वो को रिलेटेड है अगर आपको टेंसेस अच्छे से आ जाते हैं तो आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी बहुत अच्छे से आ जाएगा तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको ये दोनों टॉपिक ना बहुत स्ट्रॉन्ग समझ के रखने हैं these topics should be clear in you these topics should be clear in your mind and that way you can do wonderful things with it so please remember that you definitely know all these things in a better manner. Okay, it's really an important thing. Hi RS, a very good evening to everybody right in there. ओके आगे चलते हैं टेंसेस क्या होते हैं मैंने आप लोगों को बताया है टेंसेस बेसिकली क्या है तीन टाइप के टेंसेस होते हैं हमारे एक हमारा होता है प्रेजेंट टेंस एक हमारा होता है पास्ट टेंस एक हमारा होता है फ्यूचर टेंस ठीक है ये तीनों मेजर टेंसेस होते हैं यानी कि प्रेजेंट हम किससे डिनोट कर लेते हैं मैंने आपको पहले भी बताया नाउ से जो अभी हो रहा है उसको मैं प्रेजेंट कंसिडर कर लेती हूँ ओके उसके बाद जो मेरा पास्ट टेंस है वो बेसिकली डील करता है येस्टरडे के साथ all right things that happened yesterday और फ्यूचर टेंस डील करता है टुमारो के साथ यानी कि आने वाला कल दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड so all these things they are very important to everybody right in there please make sure that you all are understanding the importance of all the tenses आपका प्रेजेंट होता है जो बिल्कुल अभी हो रहा हो पास्ट जो कल बीत गया और फ्यूचर जो कल आने वाला है तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए अब कितने टाइप के टेंसेस होते हैं हर टेंस आपका चार ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइडेड है एक है सिंपल प्रेजेंट टेंस ठीक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये चार टेंसेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं ये चार टेंसेस हैं जो आपको हर टाइप में मिलेगा यानी तीनों टाइप में मिलेगा फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हेयर टॉकिंग अबाउट वॉट अगर आई एम हेयर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट की चार ब्रॉडर कैटेगरीज है एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सो कीप दैट इन योर माइंड all right this is a very important thing okay keep it in your mind everyone okay so guys अब हमें मतलब समझना है okay this should be clear to us in our mind all right this should be clear to us in our mind that this should be clear to us in our mind कि जो different टाइप के टेंसेस हैं वो किन किन चीज़ों के लिए यूज किए जाते हैं all right keep it in your mind okay everybody
इज दैट क्लियर? देखो, अब जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो हमारे क्या है, ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है? एक्सप्रेस करने के लिए आपकी डेली टास्क, यानी कि आपकी रोजमर्रा की चीजें। साथ के साथ यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है? जो पूरी दुनिया को पता है, जो बिल्कुल सेम है। और फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर फैक्ट्स के लिए भी यूज किया जाता है इन सेंटेंसेस को। ओके, ऑल राइट, इन सेंटेंसेस को, आई मीन इन इस पर्टिकुलर टेंस को आपको ध्यान में रखना होता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको अगर डेली टास्क की बात करूं, तो डेली टास्क में जैसे हमारा क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला दैट आई गेट अप एट 7 o'clock डेली, सो ये मेरी हैबिट है। मैं रोज 7 बजे सुबह उठ जाती हूँ, सो दिस इज माई डेली टास्क, दिस इज वॉट माई हैबिट इज। Okay, so to make the sentence, add s or es to the root verb if the subject is singular. तो हमें s ऐड करना होता है या es ऐड करना होता है रूट वर्ब में, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो रूट वर्ब विल रिमेन एज इट इज, कीप इट इन योर माइंड। ऑल राइट, जैसे कि मैंने आपको बोला शी ईट्स आइसक्रीम, ठीक है। सो यहाँ पे एस हमने क्यों लगाया है? क्योंकि शी है और शी क्या है? सिंगुलर। दे ईट आइसक्रीम, सो दे क्या है? प्लूरल है। ईट क्या है? प्लूरल वर्ब। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सो ये आपका फैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं बेसिकली यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रही हूँ, तो यूनिवर्सल ट्रुथ के केस में भी आप यहाँ पे क्या लगाते हो? एस लगाते हो। तो यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड। All right, is that clear? Perfect. As same thing. Ma'am, when we use perfect and perfect continuous as the same thing. मतलब शिवम, what are you talking about? Are you talking in the context of the tense? कि हम present perfect कब use करते हैं? Perfect continuous. So for that you have to stay tuned so that I'll explain it to you in this session. देवांशी, सेशन में रहो, I'll tell you. ठीक है? अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखो, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट तो मैंने आपको बताया कि हम कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है वो हम तब यूज करते हैं जब वो चीज हो रही हो। जैसे अभी आई एम टीचिंग यू, all right, you are listening to me. Okay, for example, if I'm talking about my mom is preparing tea in the kitchen, so while I'm speaking and the thing is actually happening. तो जब ऐसा हो ना कि आपके बोलते हुए टाइम पे अगर कोई चीज हो रही हो, तो उस केस में यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। इस वाले केस में आपका ना ऑक्सिलरी वर्ब ऐड होता है, इज, एम या आर। उसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ऑर्डर टू शो। ऑल राइट, प्लीज हेल्प मी। श्लोक बेटा, वो सब हो जाएगा, टफ नहीं है। मैंने आपको बता रखी हैं ये बातें कि मैंने अभी जो आप लोगों के साथ सैम्पल पेपर भी डिस्कस किया है, ओके, जो 10th का सैम्पल पेपर डिस्कस किया है, वहां पे भी मैंने आपको ये चीज बताई है कि हमें हिंट मिलता है। आपको सेंटेंस से ही हिंट मिलेगा, अदरवाइज आपको ये लगेगा कि दोनों का आंसर ही सेम है। यू विल गेट द हिंट ओनली फ्रॉम द सेंटेंस, एंड इन ऑर्डर टू लुक फॉर दैट यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू फाइंड अ की वर्ड। आपको एक कीवर्ड पक्का से मिलता है, बस आपको उसे ढूंढने की जरूरत होती है। ऑल राइट, द मोमेंट यू विल फाइंड इट नो, इट बी बिकमिंग इजी फॉर यू, ठीक है। सो अब क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब भी होता है वही जो चीज कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। whenever we are talking about something which is in continuation, therein comes your continuous tense. Keep it in your mind, it's an important point. So action or event happening at the time of speaking. So what do we do in order to make this sentence? We add ing to the root verb. For example, they are swimming, so are यहाँ पे दे रखा है, swim आपका verb है, ing added to it. She is eating her lunch, so is लगाया, eat लगाया, ing. मोनिका इज अटेंडिंग इंग्लिश क्लास, इज लगाया, अटेंड किया आपने, फिर आपने आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई, एंड देन यू आर गुड टू गो। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू ऑलवेज नीड टू कीप दिस इन योर माइंड। श्लोक, लेट्स सी, ओके, नॉट दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ मे बी, ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? नाउ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो बेटा, जो परफेक्ट है ना, इट डील्स विद द कंप्लीशन ऑफ अ टास्क, all right, like finishing a work, ठीक है। it's like completion of a task or the finishing of a work. It is always used to express what an action or event which is completed, एक ऐसा action या एक ऐसा event जो complete हो चुका है।
इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं विद हैज और हैव। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, जो बिल्कुल अभी यहाँ पे आपका क्या होता है, आप इसको कंसिडर करते हो आपका रीसेंट पास्ट, ठीक है, यानी कि जस्ट कंप्लीटेड, जैसे जो ज्यादा टाइम ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने ना सबमिट कर दिया है अपना, आपको कोई मिलता है आपका फ्रेंड आपकी यूनिवर्सिटी में एंड ही इज लाइक कि क्या वो क्या कहते हैं असाइनमेंट सबमिट कर दिया, सो यू लाइक या आई हैव सबमिटेड इट ऑलरेडी, तो मतलब कि हाँ मैंने सबमिट कर दिया था उसे, ठीक है। सो दैट इज योर रीसेंट पास्ट, मे बी लाइक इट्स लाइक अ डे बिफोर, एक दिन पहले भी हो सकता है, या हो सकता है कि 2 दिन पहले भी हुआ हो। तो ज्यादा जिस चीज को टाइम नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू यू, उसको हम परफेक्ट टेंस बोलते हैं। Everybody, I am extensively explaining this particular topic today along with subject verb agreement क्योंकि दोनों linked up हैं. And the kind of questions that we saw in the sample paper of class 10. So the questions, they are pretty easy. You always look for the word that you're gonna like answer in a better way. जैसे अगर आपने देखा होगा मेरा डिस्कशन सैम्पल पेपर का, उसमें ये बहुत अच्छे से गिवन है। ये ब्लू अप इसका आंसर, मतलब जिस क्वेश्चन में दे रखा है उसमें एक हमें हिंट वर्ड दे रखा है, एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है उसमें, येस्टरडे। सो मुझे येस्टरडे से पता चल गया है कि मैं फ्यूचर नहीं यूज करूंगी, मैं प्रेजेंट नहीं यूज करूंगी, मुझे पास्ट यूज करना है। अब पास्ट का कौन सा फॉर्म यूज करना है वो मुझे फिर से उस सेंटेंस को पढ़ के ही समझ आएगा। तो यू बेटर पे अटेंशन टू दीज थिंग्स। आपको टेंस आपके टिप्स पे होने चाहिए। It is very important. All your tenses should be on your tips, everybody. अगर आपके टिप्स पे टेंसेस हैं आपके लिए इजी हो जाएगा सब समझना। If that is not the case, then it is going to be the best, sorry, then it is going to be the very difficult thing, ठीक है। तो इन सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप हमेशा क्या लिखते हो, हैज, हैव, और साथ में आप डालते हो इसके थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, सो हैव लगाया प्लस आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिनिश लगाया। शी हैज ऑलरेडी सीन द मूवी, हैज लगाया प्लस आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया। So these are the things that you always need to keep in your mind every time whenever you are dealing with the perfect tense. ठीक है? Clear everyone? Yes, everyone. Yes, hi Karthik, hello. Yeah, Devanshi, yes, of course, you will get all the rules. Okay? Is that clear? चलिए नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब ध्यान से सुनो, प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आपको बताया कहाँ पे यूज होता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हम यूज करते हैं जब जो चीज अभी थोड़े टाइम ही हुआ है, जिसको कंप्लीट हुए या काम खत्म हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है, ठीक है, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहाँ पे यूज करते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वहां पे यूज करते हैं जब हम एक एक्शन की बात करते हैं जो कि आपके किसी पॉइंट में पास्ट में स्टार्ट हुआ है, बट उसका जो कनेक्शन है ना, उसका कनेक्शन आपके नाउ से है। नाउ का क्या मतलब हुआ कि आप उसका कनेक्शन आपके प्रेजेंट से है। सो जिस चीज का भी कनेक्शन आपके प्रेजेंट से है, मतलब वो चीज स्टार्ट तो पास्ट में हुई है, ठीक है, मतलब कब स्टार्ट हुई है, स्टार्ट तो वो पास्ट में हुई है, लेकिन उसका कनेक्शन आपके अभी से बिल्डअप है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन वो चीज ना चलेगी, देखो ये कॉम्बिनेशन है आपके प्रेजेंट परफेक्ट का साथ के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। मैं आपको अगर बोल रही हूँ कि मैं सुबह 9 बजे से क्लासेस ले रही हूँ, तो जो सुबह के 9 बजे थे 23 सितंबर, आई मीन या 23 सितंबर की डेट में जो सुबह के 9 बजे थे, ठीक है, तो वो अब पास्ट हो चुका है, लेकिन उसका कनेक्शन मेरे अभी से भी है। क्यों? क्योंकि काम मेरा अभी भी चल रहा है, ठीक है, मैं ना आप लोगों को अभी भी पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, so the act of teaching is still going on for me. So what will I write? I have been taking the classes since morning. Okay, I've been taking the classes since 9 o'clock. तो मैं सुबह 9 बजे से classes ले रही हूँ. So this is what you need to keep in your mind. All right, is that clear everyone? ओके, सो बेसिकली अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने बताया इसमें आप लगाते हो हैज और हैव लगाते हो, ठीक है, प्लस बीन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीन लगाओगे जो बेसिकली मुझे दिखाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। फिर आप रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आई एन जी ऐड करोगे। एग्जाम्पल देखो, पूनम हैज बीन लर्निंग स्पेनिश फॉर अ वीक,
तो जो पूनम का एक्ट था ना स्पेनिश लर्न करने का, वो एक हफ्ते पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो अभी तक कंटिन्यूड है। इसलिए आप यहाँ पे बोल रहे हो दैट पूनम हैज बीन लर्निंग स्पेनिश फॉर अ वीक. Similarly, next thing that you are going to talk about, you have not been attending the lectures since last Monday. तुम लेक्चर्स पिछले मंडे से अटेंड नहीं कर रहे हो. सो हैव प्लस बी नॉट प्लस बीन plus verb का root form plus ing added to it. That is what you need to keep in your mind. All right. समझ में आई आपको ये बात? दैट इज हाउ यू नीड टू जस्ट गिव दी आंसर्स. तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आप वहीं पे लगाओगे जहां पे आपका काम पास्ट में तो स्टार्ट हुआ था और वो कंटिन्यूड मैनर में था और वो एक पॉइंट तक कंटिन्यू रहा, बट व्हेन इट इज गोइंग टू एंड हमें नहीं पता है. तो आप बस उसको उस केस में उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाओगे. ठीक है? क्लियर? ऑल राइट, आई होप दैट्स क्लियर. अब हम चलते हैं पास्ट टेंस में. पास्ट टेंस में भी आपके वही चार टेंसेस आएंगे जो मैंने आपको प्रेजेंट में बताए हैं. सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, या प्रोग्रेसिव टेंस, या पास्ट परफेक्ट टेंस, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो कीप इट इन योर माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो आप देखो ये सिंपल तो मैंने बताया आपको, सिंपल टेंस हर चीज में मिलेगा. पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी मिलेगा, आई मीन कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस मिलेगा, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. लेकिन अब यहाँ पे पास्ट हो गया है, तो अब अगर आपने सिंपल प्रेजेंट अच्छे से समझ लिया तो पास्ट समझना इज नॉट गोइंग टू बी अ मेजर डील फॉर यू गाइस. ओके, इट्स गोना बी जस्ट अ पीस ऑफ केक. सो लेट्स हैव दैट पीस ऑफ केक. ऑल राइट, सिंपल पास्ट टेंस में एक्शंस जो कि अभी पास्ट में हुए थे एंड पास्ट हैबिट्स आपकी वो होती हैं जो हम पहले किया करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट ऑफन कम्स विद एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम का क्या मतलब है? यानी कि मैंने आप लोगों को ये बताया था, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कह रही हूँ जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आया है, वहाँ पे ये क्लियरली मेंशन्ड है. ओके, दिस इज सो क्लियरली गिवन कि कैसे हमें चीजें यूज करनी है. इट ऑफन कम्स विद एडवर्ब ऑफ टाइम एंड समटाइम्स विदाउट इट. To make the sentence we use the second form of the verb. यानी कि इसके लिए आपको simple second form of the verb use करनी है. I ate an ice cream. I met an old friend. He met his mom, or like he prepared the lunch. He baked the cake. They baked the cake. तो ये सिंपल एक्टिविटी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू मेंशन. ओके, नथिंग मोर देन दैट इज रियली नीडेड इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ऑल राइट, आई होप दैट इज मेकिंग सेंस टू एवरीबडी. इससे ऊपर हमें कुछ नहीं लिखना है. ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे मिस गुप्ता वर्कड इन कोलकाता, सो सिंपल सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बीइंग यूज्ड है. देन ही केम होम लेट लास्ट नाइट, सो यहाँ पे केम इज योर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो दीज थिंग्स आर प्रीटी सिंपल दैट यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर करेक्टली एंड फॉर योर गुड. हाँ देवांशी, देखो बेटा, एस और ई एस का यूज मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनो. ठीक है, लेट मी टेल यू इन दिस सेशन. सिंपल प्रेजेंट में था बेसिकली वो. Yes, Shlok, go ahead. All right. Yes, Antima. This is for CBSE 9 as well as 10. Okay. I mean, अगर आप टॉपिक की बात कर रहे हो तो टॉपिक आप दोनों के कोर्सेज में आ रहा है. All right. ये श्लोक आपने क्वेश्चन अगर देखा होगा ना तो उसमें क्लियरली गिवन है. ओके, दिस इज सो क्लियरली डिस्क्राइब कि आई मीन क्वेश्चन में भी ये आपको मैंने हमेशा बोला है, आपको जो आपका फिलर आएगा ना, फिल इन द ब्लैंक, उसमें हमेशा एक ऐसा हिंट होगा कि ईदर यू विल बी गोइंग अहेड विद द फ्यूचर और यू विल बी गोइंग विद पास्ट, और ईदर द पास्ट एंड द प्रेजेंट. सो यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड कि मुझे किस तरीके से समझना है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है. ओके, इज दैट क्लियर एवरीबडी? इज दैट क्लियर एवरीवन? Guys, this particular session is for 90s. Hey Asif, hi dear. All right, this session is for 90s. This session is for 90s. Okay. So अब सिंपल पास्ट टेंस, एस और एस का क्या है बेटा? जितने भी वर्ड्स आपके होते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से एंड होते हैं, द वर्ड्स दैट एंड विद कॉन्सोनेंट साउंड. जैसे कि अगर मैंने आपको बोला यहाँ पे जस्ट अ मिनट, या कॉन्सोनेंट साउंड से जैसे कि कुछ एंड हो रहा है, जैसे मैंने बोला वॉक, टॉक, और अगर मैं आपको बोल रही हूँ लर्न, ओके, आई एम टेलिंग यू हेयर ड्रिंक, ओके,
or I am telling you like eat. आई एम टेलिंग ईट. सो इन सब में आप क्या देख रहे हो, कॉन्सोनेंट साउंड से एंड हो रहा है ये. ठीक है, जैसे यहाँ पे एन साउंड आ गया, यहाँ के साउंड या ट साउंड या के साउंड. तो जब भी एनी वर्ड विच इज एंडिंग विद वन सिंगल कॉन्सोनेंट साउंड यू आर गोना ऐड एस टू इट. ओके, आप उन वर्ड्स में क्या ऐड करोगे, आप उसको सॉरी आप उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस ऐड करते हो. ठीक है, दिस इज रियली एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, काइंडली कीप दिस इन योर माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, और साथ के साथ एक और चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि आपको एस तो आपने लगाया, और जो भी वर्ड जैसे कि जो डबल लेटर साउंड से एंड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको बता रही हूँ डबल लेटर से, ओके हियर वी गो, टीच, ओके, और वॉच, ऑल राइट. सो यहाँ पे च साउंड है. Okay, so ch sound is basically what? Like ch sound here, we are talking about the two letters that are ending with ch sound. I mean, whenever there are two letters, whenever there is a sound of two letters coming up, ठीक है, at the end, so उसमें हम हमेशा es लगाते हैं उसको singular बनाने के लिए. Also, if it ends with just a vowel, all right, like move here यहाँ पे, तो आप उसमें सिर्फ s ऐड करते हो because e is already given. Okay, so this is just one of the ways that you need to keep in your mind. All right, is that clear? Is that clear to everyone? Yes, clear? ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस की तरफ, विच इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, progressive tense. Okay, this is used for what? It is used to express the actions that started before another action and still going on. What does that mean? I am talking about an action, okay, which got started in the past, for example, and that was going on in a continuation manner. यानी कि कुछ ऐसा जो हमारे पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो कंटिन्यूटी में चल रहा था. जैसे मैं बोलूं, I was attending a wedding last month at this time. तो मैं लास्ट मंथ इस समय पे, ठीक है, अपने एक क्या कहते हैं, एक वेडिंग या फिर एक फंक्शन अटेंड कर रही थी. तो वो वाली चीज वाज हैपनिंग इन अ कंटिन्यूअस मैनर एंड दैट इज व्हाई आई कॉल इट टू बी द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, इसलिए मैं उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोल रही हूँ. सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द सिचुएशंस दैट वी नीड टू डील विद एंड दोज वर इन द पास्ट, सो इन ऑर्डर टू मेक दोज सेंटेंसेस यू हैव टू ऐड ing टू द वर्ब. मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको क्या बताया था, हम या तो इज, एम और आर लगाते हैं प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing. ठीक है, वो आपका आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. Past continuous के लिए what are we gonna do is that you will have to add was or were. Okay, was is for singular, were is for plural, plus first form of the verb plus ing to it. That's what you need to keep in your mind. Okay, so you are adding ing to the root verb. Example, I was not studying when she called me. They were trying to find the thief. मतलब वो कोशिश कर रहे थे thief को ढूंढने की. ठीक है, दैट इज व्हाट पास्ट कंटिन्यूस इज. नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस. परफेक्ट मैंने आपको बताया, इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट द कंप्लीशन ऑफ समथिंग. तो पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि उसका मेजर रूल क्या है. एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हुआ था एक दूसरे एक्शन से पहले. सो इस सेंटेंस को बनाने के लिए आप हमेशा हैड यूज करते हो और हैड के साथ अब वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हो. एंड हैड इज यूज विद बोथ, इट इज यूज विद सिंगुलर as well as your plural subject. Okay, keep it in your mind. जैसे has तो मैंने आपको बताया, has क्या कहते हैं, सिंगुलर, उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है. have आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है. लेकिन जो had है वो आप दोनों के साथ यूज कर सकते हो. आप चाहो उसे has के साथ भी यूज कर सकते हो, आप चाहो उसे have के साथ भी यूज कर सकते हो. All right. Example, everybody, we had not met before. She had solved all the sums in the exercise. Pretty simple. अब हमारा आता है past perfect continuous या फिर progressive tense. उसमें हम क्या लिखते हैं, actions that had begun and continued up to some time in the past. यानी कि कुछ actions जो क्या कहते हैं start हुए थे और कुछ time तक past में रहे.
मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या बताया था, जो पास्ट में स्टार्ट होता है लेकिन उसका कनेक्शन मेरे नाउ से है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है, जो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही कंटिन्यू रहा, कब खत्म हुआ मुझे नहीं पता, बट लेकिन कंटिन्यू रहा। फॉर एग्जाम्पल लाइक इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग येस्टरडे। ठीक है, तो मतलब कल ना सुबह से ही बारिश हो रही थी। तो वो बारिश कब जाके रुकी, कब कंप्लीट हुई, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। व्हाट आई एम अवेयर ऑफ इज that it was just raining right in the morning. Sorry, it was just raining since morning. That is what you need to keep in your mind. Okay, one important thing in sentences में present perfect continuous, past perfect continuous में आप दो prepositions का यूज करते हो, since और for का। since हमेशा हम यूज करते हैं एक point of time के लिए। All right, you always use since for a point of time, while you use for a duration. ठीक है, हम इसको एक ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं। These are the important things, kindly keep in your mind, since and for. All right, इन sentences को बनाने के लिए had been plus ing form of the verb. For example, I'd been waiting for half an hour. He had been trying to meet the principal. All right, is that clear? ठीक है, तो pretty easy, वहां पे हम has, have plus been plus ing यूज कर रहे थे। इस केस में हम had plus been plus ing यूज करेंगे। That's it. That's what we need to keep in our mind. Yes, if you want 5 minutes break, you can go. All right, but the session, my dear, is going to continue. All right, clear? Okay, all righty. नाउ द नेक्स्ट टेंस एंड द लास्ट टेंस। ठीक है, उसमें क्या है हमारा फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया, हमारा पास्ट टेंस हो गया, अब हमारे हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। तो फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल एक्टिविटीज के लिए, आई विल टेक द क्लास टुमारो, ही विल नॉट कम फॉर द क्लास, or mom will prepare this for dinner today, or papa will give me a gift on my birthday, or anything, but I'm just talking about one simple event, that's it, and nothing more than that. Okay, इस सेंटेंस को बनाने के लिए you add will or shall and you use first form of the verb. आप क्या करते हो, आप will या shall से बनाते हो सेंटेंस, और इसके साथ आप ऐड करते हो अपने verb का first form. That's it, that is what you do. Okay, for example, Riyansh will come to my home to celebrate. Riyansh मेरे घर पर आएगा celebrate करने के लिए. I shall go to the police to report such a crime. मैं पुलिस के पास जाऊंगा रिपोर्ट करने के लिए ये crime. Okay, so you need to keep this in your mind. Am I clear on this, everybody? Yes, am I clear, everyone? Okay, here we go, everyone. Here we are. Okay, everyone. So now let's get going, everybody, towards the next thing. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव टेंस, ये हम यूज करते हैं कब, जब जो आगे आने वाले फ्यूचर में जो चीजें होंगी, जैसे आई विल बी कमिंग विद द सेशंस फॉर ग्रामर इन दिस मंथ। तो अब ये चीज कंटिन्यूटी में रहेगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, आप लगाओगे विल, उसके साथ आप लगाओगे बी, तो विल प्लस बी, और आप ing फॉर्म ऐड करोगे टू द रूट वर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट। Example, everyone, Mohit will be picking me up on Monday. They will be going to the Bahamas next month. Okay, that is how you need to keep it in your mind. All right, is that clear, everybody? Okay, clear? अब हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट। फिर से परफेक्ट है तो कंप्लीशन की बात करेगा, लेकिन अब कंप्लीशन की बात होगी फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में। Event which will happen in future and will be completed by a certain time period. To make the sentence, we will add will have and then we will use the third form of the verb together. Example, you will not have completed your work by tomorrow. They will have eaten their lunch by 2 p.m.
तो जब भी हम एक टाइम पीरियड मतलब एक टाइम स्पेसिफाई कर देते हैं ना कि इतने बजे तक, so now you will always be saying what, like will have plus third form of the verb. That way you will have to go ahead with it. Okay, that way it's gonna be a little more easier for everyone right in there. Cool? चलिए, अब हमारा लास्ट टेंस कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव टेंस। यानी मैं अब उस टेंस की बात कर रही हूँ जो मेरे फ्यूचर में किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी में रहेगा। ओके, तो यानी कि प्लान्ड एक्शंस होते हैं, ये हमेशा प्लान्ड रहेंगे। अगर मैं बोल रही हूँ दैट आई विल हैव बीन टेकिंग द क्लासेस रेगुलरली सिंस मॉर्निंग, ओके, द नेक्स्ट मंथ, दैट मीन्स कि मेरा ये प्लान्ड एक्शन है। नेक्स्ट मंथ से मैं बिल्कुल रेगुलरली और एक प्लान मैनर में ये चीज करने वाली हूँ। ऑल राइट, इज दैट क्लियर? इट डैश हेविली व्हेन आई गॉट अप, विच फॉर्म ऑफ द वर्ब? ओके, यहाँ पे आप बोलोगे इट वाज रेनिंग हेविली व्हेन आई गॉट अप। इट वाज, सुमित, इट वाज रेनिंग हेविली, वाज रेनिंग आएगा ना बेटा। व्हेन आई गॉट अप, गॉट लगा दिया ना, गॉट से इंडिकेशन मिल गया है कि पास्ट टेंस है। ठीक है, तो अब पास्ट टेंस में अब आप ये बोलोगे इट हैड बीन रेनिंग हेवनली व्हेन आई गॉट अप, नहीं। ऑल राइट, सो वहां पे ये मतलब आएगा, आपका सेंटेंस ये बता रहा है कि जब मैं उठा था ना बहुत तेज बारिश हो रही थी। दैट इज व्हाट यू मेंट, नो? तो यहाँ पे वॉज रेनिंग आएगा, सुमित। ओके, तो अब यहाँ पे देखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इवन दैट विल हैपन एट फिक्स टाइम एंड विल कंटिन्यू अप टू सम टाइम। इवन जो होगा एक फिक्स टाइम पे और कंटिन्यू रहेगा कुछ टाइम तक। इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप विल प्लस हैव प्लस बीन और फिर आप आईएनजी ऐड करोगे वर्ब में। एग्जाम्पल, द चॉय विल कम की सॉरी will have been singing tomorrow and by 8 a.m. she will have been waiting for 3 hours. So you need to keep it in your mind. Alrighty, clear? Alright, so we are done with the tenses in terms of like the future. No, sorry, in terms of present, perfect and future. अब मैं आपको एक going to बताती हूँ, which is also a part of the future. Okay? Going to में क्या होता है? Future plans. या फिर फ्यूचर अरेंजमेंट्स। जैसे मैंने बोला, गोइंग टू इज बेसिकली यूज टू एक्सप्रेस द फ्यूचर इवेंट्स, यानी जो चीजें होने वाली हैं एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट एक्शंस। प्रेजेंट एक्शंस के बेसिस पे जो चीजें आगे होने वाली है उस पर। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कोल्ड हर फॉर द सिली मिस्टेक। सो सिली मिस्टेक की, सिली मिस्टेक इज द एक्शन, उसका रिजल्ट क्या है? punishment. ठीक है, scolding. The bus is not going to leave until 5 p.m. I know something may have happened, इसलिए बस अब वहां से निकलेगी नहीं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं यहाँ से सॉरी कि बस यहाँ से नहीं निकलने वाली है 5 बजे से पहले। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विच इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। काइंडली टेल मी व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। वी विल हैव 10 रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। बताओ मुझे क्या है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। Yes, quickly. Yes, everyone, quickly. What is it? Quickly, everyone. What is it? Subject verb agreement. It is basically talking about an agreement between, very good Shlok, you're absolutely right. Okay, an agreement between the subject and okay, I dash my work before the bell rings. Okay, so what does it says कि bell के बजने से पहले मुझे अपना काम खत्म करना है. So what does it talk about? क्या है? Before the bell rings. क्या? Everyone? Just tell me what's gonna be the answer in this. Sumit said no. I dash my work before the bell rings. What are we going to here talk about? Yeah, it could be noun or pronoun. Absolutely correct. What is going to be the answer in this case? I dash my work before the bell rings.
आंसर क्या होगा इधर? यस एवरीवन, आई डिड माई। बेटा फिनिश ऑलरेडी दे रखा है ना सलोनी, फिनिश दे रखा है। फ्यूचर परफेक्ट, आई डिड क्यों लगाओगे सलोनी? फिनिश वर्ब आपको दे रखा है, व्हाई विल यू यूज डिड? डन आ जाएगा, बिना हैज और हैव को यूज किए आप डन लगा दोगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दोगे। आई हैड डन माई वर्क। अच्छा आप ये कह रहे हो मैंने अपना काम कर लिया था। बेल बजती है, उससे पहले रिंग्स है बेटा, प्रेजेंट टेंस दे रखा है। आई फिनिश्ड माई वर्क बिफोर द बेल रिंग्स, और आई फिनिश माई वर्क बिफोर द बेल रिंग्स। क्या है? आदत है, बेल के बजने से पहले मैं अपना काम खत्म करती हूँ। ठीक है, फिनिश आंसर आएगा। आई विल फिनिश क्यों आएगा? आई विल फिनिश द वर्क बिफोर द बेल रिंग्स, और बिफोर द बेल विल रिंग। हैव डन क्यों आएगा? मेरे को चक्कर आ जाएंगे बच्चों, क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? आई फिनिश्ड। गाइस सेंटेंस पढ़ो, क्या बोल रहा है सेंटेंस? आई डैश माई वर्क बिफोर द बेल रिंग्स, यानी कि रोज बेल बजती है। हैबिट, हैबिचुअल चीज, डेली टास्क, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मैं अपने जैसे कहते नहीं है कि मैं तो घंटी बजने से पहले रोज अपना होमवर्क खत्म कर लेती हूँ, तो इट्स लाइक दिस, नो, आई फिनिश माई वर्क बिफोर द बेल रिंग्स, तो फिनिश इज द राइट आंसर। अच्छे से सेंटेंस पढ़ो, फिर हबड़ा तबड़ी में आंसर देने से कोई मतलब नहीं होता है, इट्स ऑल यूजलेस एंड पॉइंटलेस। ओके, चलिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट 10 रूल्स हैं, करते हैं हम लोग। रूल नंबर 1, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल, नॉट डिफिकल्ट। क्या है वो? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर है, सबको पता है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल है, सबको पता है, वेरी इजी। जैसे कि यहाँ पे बॉय इज क्रॉसिंग द रोड, ठीक है, यहाँ पे बॉय मेरा क्या है? सिंगुलर है, वन, तो मेरा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, यानी कि वर्ब भी मेरा सिंगुलर है। बॉयज यहाँ पे प्लूरल है तो आर भी प्लूरल, द बॉयज आर क्रॉसिंग द रोड। तो यहाँ पे बॉयज आपका सब्जेक्ट है जो प्लूरल है, और आर आपका वर्ब है जो भी प्लूरल है। यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। ऑलराइट बेटा, नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन अभी का सेशन में स्पेसिफिकली नाइन्थ के लिए ले रही हूँ, अगर टेंथ का बच्चा भी अटेंड कर रहा है दैट इज ओके। ऑलराइट, इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर इज अटेंडिंग द सेमिनार। तो टीचर आपका सिंगुलर हो गया, इज अटेंडिंग आपका क्या हो गया? यहाँ पे मैं कंटिन्यूस की बात कर रही हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे इज लगाऊंगी, क्यों? क्योंकि टीचर मेरा सिंगुलर है। तो टीचर सब्जेक्ट सिंगुलर, इज वर्ब सिंगुलर, फिर टीचर्स आपका प्लूरल है, आर भी आपका प्लूरल है, सो टीचर सब्जेक्ट प्लूरल, आर वर्ब प्लूरल। Very easy and straightforward. That's it, you need to keep in your mind. The rule is this, there should be a concord between, I mean, there should be an agreement between your subject and the verb. Alright, they should agree in numbers with each other every time, and that too perfectly. Okay, that's clear. Now, rule number 2, persons 1, 2, and 3. Okay, whether the subject is first person singular or plural, it will take the plural form of the verb, or you can say that the root verb doesn't change. यानी कि first person singular क्या हो गया? I, and first person plural क्या हो गया? We. तो इसमें आपका verb जो है वो हमेशा plural आता है. Keep it in your mind. I is an exception which usually takes your plural verb, I mean plural form of the verb. But I के साथ आप was लगाते हो otherwise, और वैसे I के साथ have आता है, has नहीं आता है. तो make a point of this. बेटा आप इसको डिवाइड करते जाओगे तो आप इसके 50 रूल्स भी बना सकते हो, बट इन मेजर 10 रूल्स होते हैं, इसमें मैं आपको वो सारी बातें कवर करा रही हूँ जो आपकी टीचर ने 33 रूल्स में करवाया होगा। बहुत सारी और जगह पे आप 50 रूल्स भी देख लोगे, ठीक है। सो लाइक ऑल दीज रूल्स दे आर जस्ट बीइंग broken into the different parts, that is what it is happening, ठीक है।
नाउ अब आप देखो, अगर आपका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, यानी कि अगर यू है, तो वो प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे यू यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे लाइक आएगा। ऑलराइट, यहाँ पे यू आपका सब्जेक्ट है एंड सेकंड पर्सन है, इसलिए प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक है। ऑलराइटी, देन व्हेन द सब्जेक्ट इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि ही शी इट है, तो उसमें हम एस या ई एस ऐड करते हैं रूट वर्ब में। कीप इट इन योर माइंड, आई टोल्ड यू लाइक हाउ टू ऐड एस और ई एस टू इट। Okay, so just one note for everybody right in here, like a lot of students think कि जब भी हम s और es लगाते हैं तो वो जो verb है वो plural हो जाता है. No my dear, that's not the case. Then we make it a singular verb. You need to keep it in your mind. All right, let's clear it with some examples. For example, she likes candies. यहाँ पे she subject है और like आपका root form of the verb है, लेकिन इसमें मैं s ऐड कर रही हूँ इसको likes बनाने के लिए, जिससे कि ये represent क्या कर रहा है, इसकी singularity. ठीक है, मैंने आपको बताया क्योंकि लाइक वर्ड है जो ई से एंड कर रहा है, वोवल से जो भी एंड होते हैं उनमें हम एस ऐड करते हैं बस. दैट इज व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. ठीक है, नाउ दे लाइक कैंडीज, दे आपका प्लूरल, लाइक आपका प्लूरल. दे इज द सब्जेक्ट जो प्लूरल है, and we have learned earlier that if the third person subject is plural, the root will remain as it is. Hence the verb like will remain as is. ठीक है, clear? So I hope two rules are clear to everyone right in there. Now we are moving towards the next rule, which is what? Which is your rule number 3. Okay, let's see what does it talk about. Okay. When the subject of the sentence comprises two or more nouns or pronouns, मतलब जब आपका सब्जेक्ट सेंटेंस का उसमें दो नाउन्स हैं या दो प्रोनाउंस हैं और वो जॉइंट है कंजंक्शन एंड से. ठीक है, मतलब उसमें आपने कंजंक्शन एंड लगा रखा है. ऑल राइट, और वो दो सेंटेंसेस से ज्यादा है. ठीक है, उस केस में आई मीन उसमें दो नाउन से प्रोनाउन ज्यादा हैं, तो वो सेंटेंस हमेशा अग्री करेगा. अग्री मतलब उसमें हमेशा हम प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं. जैसे कि यहाँ पे है द स्टूडेंट्स, द मैनेजमेंट. हम पहला ये है सब्जेक्ट, ये दूसरा है, आई मीन ये नाउन पहला दूसरा नाउन, फिर वो ज्वाइंट है कंजंक्शन एंड से, तो आपका जो यहाँ पे वर्ब हो जाएगा वो होगा कम्युनिकेट. दैट इज व्हाट यू विल बी राइटिंग हियर. देन यू एंड आई आर गोइंग टू द साइंस क्लास टुमारो. तो यू आपका एक सब्जेक्ट है, आई आपका दूसरा है, आई मीन बेसिकली इन टर्म्स ऑफ योर नाउन. उस केस में आप यहाँ पे क्या लगाओगे, एंड लगाओगे. नाउ काजल इज वन, रोहित इज टू, तो यहाँ पे आप एंड लगाओगे. ठीक है, सो यहाँ पे आपका हैव गॉन आया, यहाँ पे आपका आर आया. So this is what you need to keep in your mind. Now I would like to tell you all one rule related to your I mean the use of the with the nouns. तो यहाँ पे the students, for example, कभी कभी हम ऐसे sentences बोलते हैं ना, like the teacher and mother. okay, so जो teacher है वही mother है. मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने article the mother के आगे नहीं लगाया. So when I'm going to use the article the before mother, that is where it means I'm talking about the two different nouns. But if that is not the case, then that is clearly indicative of the fact that I am talking about just one person who is a teacher and a mother as well. Okay, so that is what you need to keep in your mind, and in those cases we are going to use the plural form of the verb. So kindly keep it in your mind. It's an important point, and make sure that you are so clear about it. Moving towards the next rule, which says when there are certain words such as along with, ठीक है, besides, not, one of, none of, as well as, जब ये वाले वर्ड्स दे रखे होते हैं ना, तो आप लोगों को हमेशा सब्जेक्ट वही यूज करना है विच अग्री टू द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ along with, जैसे प्रेक्षा along with her friends is going to the party. अब आप लोगों को ऐसा लग सकता है यहाँ पे along with के साथ hey good evening, hi रंजन, hello dear. तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ तो along with parents, जैसे मैं अब इसका एग्जांपल दूं आपको, the child, ठीक है, along with his parents is coming for the meeting. तो along with his parents आपको यहाँ पे हटा देना है, आपको child कंसीडर करना है और आपको यहाँ पे जो verb है यहाँ पे child के हिसाब से लगाना है.
तो जब भी ऐसे phrases आ जाएं along with the parents as well as besides or you say yeah these things or with, okay, with also, जब भी ये points आ जाते हैं, so we always neglect them and we always use the what we always use the simple subject, that is the singular form of the verb. That is what you need to keep in your mind. ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. वन ऑफ माय फ्रेंड्स, प्लीज गाइस अंडरस्टैंड वन थिंग which is a very important point and you need to keep in your mind whenever we have such expressions, no, like one of something, none of something, or like it says like either of, or at times we see each of. Okay. So whenever these things are being given, no, they are always followed by what? They are always followed by the singular. Keep it in your mind. They are always followed by the sorry, they are always followed by the plural noun. आपको हमेशा plural noun दिखेगा इन cases में. ठीक है, लेकिन आप इन सब के साथ जो वर्ब यूज करते हो ना, जो आप वर्ब यूज करोगे, वर्ब इसके साथ हमेशा सिंगुलर आती है. क्योंकि अगर मैं आपको बोल रही हूँ वन ऑफ द स्टूडेंट्स, इसका मतलब एक बच्चा काफी सारे बच्चों में से. अगर मैं कह रही हूँ नन ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब कि कोई भी नहीं इनमें से, तो अल्टीमेटली मैं एक ही चीज पे पॉइंट आउट कर रही हूँ. सो वेन एवर आई एम पॉइंटिंग टू जस्ट वन पर्सन आउट ऑफ अ लॉट, therein I am just going to consider that one thing to be the singular subject, and with that I am going to use the singular verb. So that is what you need to keep in your mind. So one of my friends, I said friends is plural here and I am using is here. The child is singular here, I'm using is here. Then the next thing that I'm here talking about is hard work. All right, and then we have discipline. So as well as is just deleted. I'm not gonna consider that. That's why I'm gonna just ignore discipline as well. And I'm going to take hard work as my singular subject. And with that, I am going to write the singular verb. That's it. Nothing more than that is needed. Okay. Now, besides Shreya, since it's being given with besides, that's none of my business now. I am going to ignore it completely. And then no one, of course, it says just one thing. No one means koi bhi nahi. I'm going to take that as my basic subject and I am using is here in that context. Clear? Okay. Now we have question, I mean rule number 5, which says what? When the sentence begins with here and there. ये दो words हैं, ठीक है? एक है here, एक है there. जब भी आपका sentence इन दो words के साथ start होता है, the verb will agree with the true subject. तो जो verb है वो हमेशा agree करेगा true subject से, यानी कि जो actual में subject है. For example, here are the facts that will decide the judgment of this case. यहाँ पे वो facts हैं जो decide करेंगे judgment इस case का. In this sentence, the facts is the subject, which is also plural. तो facts यहाँ पे plural है, इसलिए मैंने यहाँ पे R लगाया. ठीक है. Similarly, अगर मैं एक और बोलूँ example, there was a big stone in the middle of the road which was blocking the way. तो a big stone है, एक है, so यहाँ पे मैं was लगाऊंगी. ठीक है, which is what? Which is singular. All right. Is that clear to everybody? ठीक है. ओके, चलिए रूल नंबर 6. जब भी आपको कोई भी मेजरमेंट यूनिट दे रखा हो तो हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगाते हैं. 1,00,000 रुपीज, 1 करोड़ और 1 मिलियन, वट एवर इट इज. यू मे थिंक ये तो एक से ज्यादा है तो मैं यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा दूं. नो, यू आर जस्ट गोइंग टू यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल 50,000 rupees is drinking 2 liters of water in a day is. So that is how you need to go ahead with these things. You are never going to use the plural form of the verb unnecessarily. You will always be going ahead with just the singular form of the verb. So keep it in your mind. Okay, is that clear to everyone? Yes guys, समझ में आ गया? Drinking 2 liters of water in a day is not enough. So you need to keep it in your mind, like how do we need to go ahead with it. Okay. Now the rule number 7, which is again an important rule, which says what? Whenever you see that we are talking about the subjects और कुछ बीमारियों की बात हो रही है या फिर बुक के टाइटल्स की बात हो रही है, तो हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही लगाते हैं वर्ब की. We always do that. All right, जैसे कि maths है. Maths is not that difficult once you understand the concept. Measles is a communicable disease. आपको ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं बीमारी, इलनेस के एंड पे हमारा एस दे रखा है तो ये तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया.
ठीक है। नो, वो एक बीमारी का नाम है, डायबिटीज एस मिलेगा, ट्यूबरकुलोसिस एस मिलेगा। बट नहीं, आपको कोई भी सब्जेक्ट दे रखा हो, मैथ्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, फिजिक्स, एनीथिंग, यू आर ऑलवेज गोइंग टू कंसिडर दैट एज जस्ट वन सिंगल थिंग। उसके बाद आपका वर्ब आएगा, ठीक है। फिर अगर कोई बुक का टाइटल भी दे रखा है तो उसके साथ भी हम हमेशा क्या कहते हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, विच इज एस। सो कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड. Now, rule number 8, guys. Okay, what does it talk about? When the sentence has collective or class noun, very important. Collective noun जब भी हम use करते हैं, हम हमेशा singular form of the verb लगाते हैं. Okay, we never ever use the plural form of the verb. So यहाँ पे आपका जो subject है वो agree किससे करेगा? Singular form of the verb से. Class noun के examples. Class क्या होते हैं? Like for example, if I am saying the clothes are very dirty. Okay, the clothes are very dirty. So, sorry, the clothes, okay, the clothes are very dirty. वहाँ पे मैंने are लगाया. But अगर मैं बोल रही हूँ clothes is nice, okay, so वहाँ पे basically आपको लगेगा कुछ गलत है. तो जब भी आप सिंगुलर वर्ब को एक क्लास में रिप्रेजेंट करते हो, जैसे कि क्लोथ्स तो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है, तो वहां पे आप आर लगाओगे. ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फर्नीचर की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं फूड की बात कर रही हूँ, ऑल राइट, तो वहां पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं बेसिकली उस चीज की बात करते हुए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रही हूँ. मैं फर्नीचर को बोल रही हूँ अगर एंटीक है, तो आई कैन टॉक अबाउट द बेड, आई कैन टॉक अबाउट द स्टूल, आई कैन टॉक अबाउट द चेयर, आई कैन टॉक अबाउट anything which is available in this particular room. Okay, but I'm not specifying if I'm talking about the sofa, I'm talking about the chair, I'm talking about the bed, or anything like that. So all that you need to keep in your mind. Now, unhygienic food is not good for health. Okay, unhygienic food is आएगा not good for health. So unhygienic food में मैंने singular verb लगाया. Why? Again, because I am here representing the class now. Okay. Examples of collective nouns, everybody. A troupe of dancers was performing. तो यहाँ पे आपका सिंगुलर क्यों आया? क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रूप ऑफ डांसर्स बोल रही हूँ. ट्रूप के बाद आपके कलेक्टिव नाउन के बाद हमेशा ही एक प्लूरल आपको नाउन मिलेगा जो उसे रिप्रेजेंट करता है. जैसे मैंने आपको बोला अ बंच ऑफ कीज, ठीक है, चाबी का गुच्छा, तो मैं वहां पे आपका सिंगुलर नाउन ही यूज करूंगी. लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलती लाइक टू बंचेस ऑफ कीज, तो यानी कि दो गुच्छे चाबियों के टेबल पे पड़े हैं, तो बंचेस लगा दिया, ई एस लगा दिया है मैंने, कलेक्टिव नाउन में मैंने आपको प्लूरल कर दिया है. उस केस में मैं प्लूरल नाउन लगाऊं, प्लूरल वर्ब लगाऊंगी. बट जब तक मेरा कलेक्टिव नाउन प्लूरल नहीं हो रहा है, तब तक I am always going to use the singular verb with it. Okay? Is that clear, everyone? Is that clear, guys? ओके, अब हम कुछ नाउन्स की बात करते हैं जो हम एक यूनिट कंसिडर करते हैं, जैसे कि हो गया ब्रेड एंड बटर, जैसे कि हो गया ब्रिक एंड स्टोन. ऑल राइट, जैसे यहाँ पे है ब्रेड एंड बटर वॉज माई फेवरेट टुडे, स्वेट एंड ब्लड इज नीडेड टू बिल्ड दिस एम्पायर. तो ब्रेड एंड बटर इज लाइक वन यूनिट. Okay, and sweat and blood is also like one unit. So you need to keep these things in your mind every time. Okay, it's like very important. Okay, keep it in your mind always and forever when you need to understand. मतलब don't go with the concept कि मैम ने तो बताया था and लगा दिया, bread एक है, butter एक है, उसमें and लगा दिया. नहीं, ऐसे बहुत one units consider किया जा सकता है, जैसे brick and cement. उनको भी एक ही कंसिडर किया जाता है. सो लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च फॉर योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड अबाउट इट. Okay, so they are always considered to be the one unit, so keep it in your mind. Moving ahead, everyone, rule number 9. Okay, so the words, कुछ words ऐसे होते हैं जैसे कि each हुआ, each one, either, neither, everyone, everybody, anybody, anyone, anybody, nobody, somebody, someone, and no one. So these words and phrases ये singular हैं and so will take the singular form of the verb, और इसलिए वो singular form of the verb ही लेंगे. जैसे मैंने आपको बोला each of the candidates, ठीक है, तो each है of the candidates. अब candidates जो हैं वो आपका plural noun है. ओके,
तो दिस इज कैंडिडेट्स इज बेसिकली द प्लूरल नाउन। तो ईच ऑफ के बाद, जैसे मैंने आपको बताया वहां पे एक रूल में, नीदर ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद, नन ऑफ के बाद आपको हमेशा प्लूरल नाउन मिलेगा। लेकिन जो आप इन सब के साथ अपना वर्ब यूज करोगे, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सिंगुलर। कीप इट इन योर माइंड ऑलवेज, डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। एंड ऑल्सो जितने भी बडी के साथ वर्ड्स होते हैं, लाइक एनी बडी, सम बडी, नो बडी, ऑल राइट, तो उनके साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? Singular form of the verb. Similarly, the words ending with one, like anyone, someone, or no one, all these things, उसके साथ भी हम हमेशा singular form of the verb use करते हैं. Cool? All right. Similarly, neither of the girls. So neither, okay, then of the girls यहाँ पे आपका आएगा was. That is what you need to keep in your mind. Okay, so please make sure that you are always paying attention to the facts कि क्या word दे रखा है, and then try to use the correct form when you are writing it or either you are speaking it. Okay. Now the very last rule of subject verb agreement, wherein we are going to deal with the rule of proximity. Proximity, what does it refer to? It refers to your nearness. Okay, what does that mean? This means when a compound subject contains both a singular and a plural noun, a pronoun joined by or nor, the verb should agree with the part of the subject that is closest to the verb. इसका ये मतलब है, जब आपके sentences में नो हमारे correlative conjunctions होते हैं, everybody, we have certain correlative conjunctions, that is neither, nor, ठीक है, और वी से ईदर और, ठीक है। जब भी ये वाली चीजें होती है ना आप लोगों के लिए, तो वहां पे आप हमेशा जो ब्लैंक के पास आपका सब्जेक्ट दे रखा है उसके हिसाब से आप वर्ब लगाते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो द टीचर और द स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे आपका प्लूरल वर्ब आएगा। ओके, कीप इट इन योर माइंड। फिर यहाँ पे आया द स्टूडेंट्स हैं और द टीचर, क्योंकि अब सिंगुलर हो गया है तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा। तो ये नीदर नॉर ईदर और में कभी कभी नॉर और भी अकेले अकेले दे रखे होते हैं सेंटेंसेस में, दैट इज ओके, बट ऑलवेज फॉलो द रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। Cool. So everyone, we are done with our two topics. I am just hoping it's clear to all of you. So guys, you know, CBSE Class 10 Achievers List, a lot of students had achieved like greater marks the last year. Now you can be the next one. CBSE Class 10 Achievers List, remarkable performance was being given by the Unacademy learners in CBSE Class 10 board examination. Okay, so 99.8% were the highest scorer, 412 plus learners secured 90% or more. 100 plus learners secured 95% or more, and 114 plus learners secured 100 marks in different subjects. So we have Iconic and Plus. In Iconic, we are giving you all the personal guidance, one-on-one guidance from the top exam experts. Test analysis is there, one-on-one guidance from the top exam experts. Study planner is there, customized study plan with bi-weekly reviews. Study material, specialized notes and practice tests, and experts guidelines, study booster workshop by exam experts. In Plus, you have the live classes, the weekly tests, structured courses, and the unlimited access as well. All you can do is, guys, use the code PSH10, make your life really good and worthy for scoring the good marks. You need to come under my guidance, okay? We have UNSAT coming, everybody. This is like Unacademy scholarship test, a very big test. You all can crack UNSAT and win up to 100% scholarship. ITJ, NEET UG class 9 to 12, exclusive access to special rankers group, win a trip to the Eurospace Center. Test dates are October 8 and 15, so make the most out of it. Register right away by using the code PSH10. Keep it in your mind, everyone. Call at the number 8585858585. Okay. So for more details, like if you need more details, you can call at this number for sure. And guys, because quality education is a basic right, so big announcement is coming up for everybody on 26th of September. Stay tuned. Follow me dedicatedly. Make sure that you all are listening to all the educators correctly, nicely, and following us dedicatedly on the app and attending all the classes.
Now, guys, this batch is especially for the 10th. Okay, Umang batch is coming up. It is going to be started on 30th of September. Mode of delivery is going to be English here. Santosh sir would be there who would be teaching you science. Arshdeep ma'am would be teaching you maths. Okay, Santosh sir would be taking the classes on Monday, Wednesdays, and Friday. Arshdeep ma'am would be taking the classes on Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. Digras sir for social science would be taking the classes on Monday, Wednesdays, and Friday. I am going to take your English classes on Tuesdays, Thursdays, and Saturdays right at 6:30 to 7:30 p.m. Don't miss it out. Then Akash sir would be teaching you Hindi A on Tuesday, Thursday, and Saturday. So please make sure that you guys are definitely becoming a part of all these classes. If you have not subscribed yet, then kindly become a subscriber because I am going to come up with everything from the scratch wherein we are going to deal with the entire syllabus in a very deeper manner. So if you want the good results, if you want a last chance to start studying everything from the scratch, you have a great time for yourself because this batch is going to continue till your boards and you need to do good in your examination. So let your friends know about this and go ahead with it. Thank you, everyone. I hope you really loved the session. I am going to catch you all tomorrow. Take care if you're new and watching the video for the first time. Do not forget to subscribe the channel by hitting the bell button and definitely like the session and share it with all your friends. I am going to catch you all soon. Take care. Bye bye and